بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ شام کے 4 بجے تھے۔ میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ امی چھوٹے بھائی کو دکان پر کیک بسکٹ لانے کے لیے بھیج رہی تھیں۔ میں اٹھی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے مجھے حکم دیا کہ گلابی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں حیران پریشان امی کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رشتے والے مہمان آ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود انہی کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مجھے چائے بنانے کا کہا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خیر میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹرالی سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جو موصوف 2 خواتین کے ساتھ آئے تھے وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں۔ ان کی نظروں سے جھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی۔ ان خواتین کو ہم لوگ بہت پسند آئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھیے۔ امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی سارم سے کر دی۔ 1.5 مہینے بعد شادی کی تاریخ ٹھہری تھی۔ اس 1.5 مہینے میں نے اور سارم نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضا کرتے مگر میں انہیں منع کر دیتی۔ خیر ہماری انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب میں سارم کی دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں جو خواب اور سپنے میں نے سجائے تھے وہ سبھی پورے ہوئے۔ سارم نے میرے حسن کے خوب قصیدے پڑھے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، جانتی ہو سائمہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میری ہم سفر بننے کی لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی ہو اور میں بھی تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ آج تک کسی شوہر نے کسی بیوی کا نہیں رکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم گلاب کی طرح تر و تازہ رہو۔ گھر کے کاموں کے لیے ماسیاں بہت ہیں اور یوں بھی میرے گھر میں نوکروں کی لائن لگی ہے۔ تمہیں گھر کے کاموں کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا کام مجھے خوش کرنا ہے۔ میرے لیے بناؤ سنگھار کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کے اس اظہار محبت نے مجھے سارم کا دیوانہ بنا دیا۔ اگرچہ سارم نے کتابی باتیں کی تھیں مگر پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے۔ ہر روز وہ آتے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شاپر موجود ہوتا، میرے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ سارم کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی۔ میرا روپ نکھرنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی۔ میں کہ جاتی تو سہیلیاں رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ محبت میں ڈوبے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ شادی کو 3 ماہ ہو گئے۔ ایک دن سارم نے کہا کہ انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے، سو وہ مجھے میکے چھوڑ کر جائیں گے اور 15 دن کے بعد مجھے واپس لے جائیں گے۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اس لیے ان کا جانا لازمی تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ سارم نے شام 4 بجے مجھے میکے چھوڑا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ 15 دن بعد سارم مجھے آ کر لے تو گئے مگر وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ اکثر مجھ سے بات کرتے کرتے رک جاتے۔ ان کی آنکھوں میں اپنائیت کی جگہ اجنبیت تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں وقت کی کمی کا شکوہ کرتی تو وہ کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے۔ کبھی کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے، جوتے، زیور، تمہیں گھمانا پھرانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں انہیں کہتی مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مگر شاید اب سارم کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں گھر بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ مجبوراً میں نے کھانا پکانے والی ماسی کو اور صفائی والی کو چھٹی دے دی۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیات میں الجھ کر مجھے سارم کے انتظار کی اذیت نہیں جھیلنا پڑے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر کا کام چھوڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ بڑھا۔
तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने तंग आकर सारिम से कहा, आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई औरत रख लें, क्योंकि मैं घर में इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकती। एक तो घर इतना बड़ा है, उसकी सफाई भी अलग मसला है, और फिर आपके लिए तरह तरह के खाना पकाना। मेरा सारा दिन भी गुजर जाए तो मैं अकेले ये काम नहीं कर पाती। मगर सारिम कहने लगे, अब हमें नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है, घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, हमारा खाना पकाना कोई बड़ी बात नहीं है। सारिम के इस रूप पर मैं हैरान रह गई। कहाँ वो शादी के इब्तदाई दिनों वाले सारिम जो मुझे फूलों की तरह तरोताज़ा रखने की बात करते थे, और कहाँ आज नौकरों की तनख्वाह पर बहस हो रही थी। मेरा तो दिल टूट सा गया, मगर मैंने सारिम से कोई शिकवा नहीं किया। अगले दिन सारिम घर आए तो उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैंने सबब पूछा तो बोले, मेरे पास एक खुशखबरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर क्या बात है, मगर सारिम की आदत से मैं वाकिफ थी। एक बात बताने से मना कर देते तो फिर नहीं बताते थे। मैं भी चुप हो रही, खामोशी से अगले दिन का इंतजार किया। शाम के वक्त में उनकी मुंतज़िर थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल दी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले पहल तो मैं पहचान ही ना पाई, क्योंकि सारिम गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे। आज वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग वगैरह थे। दरवाज़ा खोलने पर अंदर आने की बजाय कहने लगे, तुम जाओ और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, ये ज्वेलरी पहनना मत भूलना, मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर जा रहा हूँ। तुम तैयार होकर आओगी तो हम यहीं से चलेंगे। मुझे अभी एक और काम है, मैं वापस जा रहा हूँ। तब तक तुम तैयार हो जाना, और जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। सारिम की बात को तो मैं हरफे आखिर समझती थी। मैंने उनसे जेवरात और कपड़ों वाला शॉपर लिया और घर आकर खुद को सजाने संवारने में मसरूफ़ हो गई। मैं तो खुद को सारिम के लिए तैयार कर रही थी, सो मेरी तैयारी में मेहनत, लगन और मोहब्बत शामिल थी। नारंगी रंग की साड़ी और गोल्डन जेवर में मैं इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे खुद पर यकीन न आया। बार बार खुद को शीशे में देख रही थी। अभी मेरी तैयारी मुकम्मल न हुई थी कि दरवाजे पर हॉर्न की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि सारिम इंतज़ार न कर सके और पहले ही मुझे लेने आ गए हैं। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके सारिम की गाड़ी में बैठ गई। आज सारिम खुद भी काफ़ी तैयार लग रहे थे, गोया हम सूरज चांद की जोड़ी लग रहे थे। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा था। सारिम आज बहुत खुशगवार मूड में थे और काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। मुझे समझा रहे थे कि लोगों से मिलने जुलने की बहुत अहमियत होती है। इंसान अगर अपनी बातों से दूसरों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाए तो काफ़ी फ़ायदे उठा सकता है। उनकी ये बातें मेरी समझ से बालातर थीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गाड़ी एक बड़े होटल के सामने पार्क की। गाड़ी का दरवाज़ा यूं खोला जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। मेरा हाथ थामे वो होटल में दाखिल हो गए। उनका ये रोमानवी अंदाज तो मैंने शादी के बाद भी नहीं देखा था, जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, हम लोग होटल में दाखिल हुए तो एक बहुत बड़े हॉल को काफ़ी करीने से सजाया गया था। रोशनियाँ ही रोशनियाँ थीं और जगमग करते होटल में बहुत सारे ऑफिसरान और उनकी बेगमात मौजूद थीं। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें अपर क्लास खानदानों के लोग आए थे। यहाँ आकर मुझे एहसास कमतरी का शिकार हुआ, मगर मुझे जल्द ही इल्म हो गया कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। वहाँ जो बेगमात आई थीं तकरीबन सभी उम्र में मुझसे बड़ी थीं, जबकि मेरा कम उम्री का सन था और रंगत भी निखरी हुई थी। सारिम ने बड़े फ़ख्र से मुझे अपने दोस्तों से मुतारिफ़ करवाया। उसके बाद खाने का दौर चला और हल्के फुल्के म्यूज़िक के साथ हमने खाना ख़त्म किया। ये माहौल मेरे लिए बहुत अजनबी था। ज़िंदगी में पहली बार मैं इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खा रही थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी, मगर मैं सारिम का साथ दे रही थी क्योंकि उनकी खुशी दीदनी थी। मुझे थोड़ी देर से महसूस हो रहा था कि अगली टेबल पर बैठा एक शख्स मुसलसल मुझे बगौर देखे जा रहा था। उसकी निगाहों से मैं उलझन का शिकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी टेबल से उठकर हमसे मुआशरत करते हुए हमारे साथ बैठ गया। बात करने पर पता चला कि वो और सारिम एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे। सारिम के साथ उनकी बेतकल्लुफ़ी खासी ज़्यादा थी। वो सारिम के सीनियर थे,
मगर उनकी बेतकल्लुफ़ी से वो कहीं से भी पुख्ता मिजाज आदमी नहीं लगे। सारिम ने मेरा भी उनसे तारुफ करवाया। उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मैं ना चाहते हुए भी उनसे मुसाफा कर बैठी। मुझे अपने शौहर पर हैरत हो रही थी कि ये सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शिराजी साहब की बातचीत जारी रही। वो खासी दिलचस्प बातें करते थे, मगर उनकी निगाहें मुसलसल मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं। पार्टी ख़त्म हुई तो शिराजी साहब मेरे शौहर से बेतकल्लुफ़ाना बातचीत करने लगे। वो उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनकी मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। खैर, हम लोग घर आ गए। सारिम ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने पार्टी में उनका भरपूर साथ दिया। इसी खुशी में सारिम ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द ही घर में किसी मुलाजिम का बंदोबस्त करेंगे। अगले दिन मैं सोकर उठी तो 11 बज रहे थे। सारिम खुद ही नाश्ता करके घर से निकल गए थे, या फिर नाश्ता ऑफिस जाकर किया होगा। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त मेरे शौहर घर नहीं होते थे, लिहाजा मैं उनके आने की तवक्का भी नहीं कर रही थी। मगर दरवाज़ा खोला तो वो सारिम ही थे। उनके इस वक्त आने पर मुझे हैरत भी हुई, मगर फिर उनके पहलू में खड़ा लड़का देखा तो उनके आने का मकसद समझ में आ गया। लड़के की उम्र बमुश्किल 17 या 18 साल होगी। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था और गालों से जैसे खून टपक रहा हो। सारिम ने खुशदिली से उसे मुझसे मुतारिफ करवाते हुए कहा, साइमा, ये है गुलशेर। माशाल्लाह बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है। हरफान मौला है। इसने कुछ अरसा होटल में भी काम किया है। ये घर के कामों से लेकर गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। सारिम ने गुलशेर का कंधा थपथपाते हुए कहा तो उसकी निगाहें और झुक गईं। मुझे उसका ये अंदाज बहुत भला लगा। सारिम कहने लगे कि ये पठान कौम से ताल्लुक़ रखता है। आज सुबह मैं घर से नाश्ते के बगैर निकल गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबे पर ही खाना खा लूं। यहाँ मेरी मुलाकात गुलशेर से हुई, जो मुझसे बहुत खुशदिली से मिला। मुझे इसका ये हुस्न इखलाक बहुत पसंद आया और ज़्यादा तनख्वाह की पेशकश करके मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा और तुम्हारा छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखेगा, है ना गुलशेर? उन्होंने गुलशेर की तरफ ताईदी निगाहों से देखा तो वो जी हाँ में सर हिलाने लगा। खैर, मैं भी मुतमईन थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। एक ही मुलाजिम घर के सारे काम कर देगा तो आसानी होगी। मुझे भी ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। गुलशेर ने वाकई मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा नफासत से करता और कोई फालतू बात न करता। अब मैं बहुत पुरसकून हो गई थी। गुलशेर से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। वो मुझे वाकई छोटे भाइयों की तरह लगता। वो भी मुझे बाजी कहता तो एहसास होता कि गुलशेर के दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो गुलशेर अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र हुई कि न जाने कहाँ चला गया है। बाहर जाकर देखा तो लॉन में बैठा रो रहा था। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर उसे कोई न कोई मजबूरी पेश आई होगी, वरना वो इस तरह न रोता। वो तो हमा वक्त चाको चौबंद रहने वाला लड़का था। खैर, मैं गुलशेर के पास गई तो वो शर्मिंदा होकर अपने आंसू पोंछने लगा, जैसे वो मुझे अपनी परेशानी से आगाह न करना चाहता हो। मैंने उससे लाख पूछा, मगर उसने मुझे कोई जवाब न दिया। उसकी माली परेशानी का ख्याल करते हुए मैंने उसे कुछ पैसे थमा दिए, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। इतने में सारिम का फ़ोन आ गया। उनका कहना था, वो कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। गुलशेर से तुम खाना बनवा लेना और खुद गोल्डन साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम बातचीत करोगी तो मेहमानों का दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों का सुनकर ही मुझे तो घबराहट होने लगी। शिराजी साहब के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं थी। उनकी गलीज निगाहें उस दिन भी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं, जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया था। खैर, मैं शाम को सारिम के कहने के मुताबिक तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे सारिम अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सारिम के साथ आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ शिराजी साहब थे, जिन्हें देखकर ही मेरी तेवरी पर बल पड़ जाते थे। मेरा दिल तो न चाहता था कि इनसे बात भी करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे गुफ्तगू करना पड़ी। मैं और सारिम शिराजी साहब के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिराजी साहब के बैठने का अंदाज खासा नामुनासिब था, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सारिम का मोबाइल बजने लगा। वो फ़ोन कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गए।
पीछे कमरे में मैं और शिराजी साहब रह गए। शिराजी साहब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका ये अंदाज पसंद आया। वो इतनी लहक लहक कर बातें करते कि मेरा जवाब देने का भी दिल न करता। 5 मिनट हो गए। जब सारिम वापस न आए तो मैं उठकर कमरे से जाने लगी। मुझे शिराजी साहब के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, शिराजी साहब ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी इस हरकत पर मैं तो सीख पा हो गई। जी में आया इनके चेहरे पर थूक दूं, मगर फिर बाज रही। मैंने शाइस्तगी से कहा, शिराजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे शौहर के दोस्त हैं, इसलिए काबिले इज्जत हैं। अगर आपने ये बदतमीजी बंद न की तो मैं भी बदतहजीबी पर उतर आऊंगी। मेरी इस बात पर जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। इत्मीनान से खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो वो मजीद आगे बढ़ने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया और शिराजी साहब के बिना बालों के सर पर मार दिया। तकलीफ से वो चिल्ला उठे। उनकी चीखें सुनकर मेरे शौहर भी कमरे के अंदर आ गए। शिराजी साहब दर्द से बिलबिला रहे थे, जबकि मेरे शौहर का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो शिराजी साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी और इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी तो न मांगी, बल्कि शिराजी साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया और कहा कि अगर शिराजी साहब इस पूरे मुल्क के बादशाह भी हों तो मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अलबत्ता इन्हें मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरी इस बात पर सारिम ने गुस्से से मुझे देखा और बोले, अगर तुमने शिराजी साहब से माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। उनके इस इंकशाफ पर मैं हैरान रह गई। क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई। शिराजी साहब से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खड़ा देखकर सारिम उल्टी गिनती गिनने लगे। उनका ख्याल था कि मैं शिराजी साहब के पांव पड़ जाऊंगी, मगर मैं टस से मस न हुई और फिर एक की गिनती गिनते ही सारिम ने तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। यकीन न आता था कि इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मुझे इस कदर बेमोल कर देगा। शिराजी साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाचने लगी। वो बुड़बुड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे शौहर उनके पीछे पीछे गए और मेरे रवैये की माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद सारिम घर के अंदर वापस आए तो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरे तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर दी और उसी वक्त घर से निकलने लगी कि सारिम ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया, मगर उन्होंने न खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए तो बोले, क्या हुआ जो गुस्से में मैंने 3 लफ्ज़ कह दिए? क्या हमारी बरसों की मोहब्बत 3 लफ्ज़ों की मोहताज है? तुम्हें क्या हो गया है? क्यों देसी लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और ख़बरदार, जो घर से बाहर कदम रखने की जुर्रत की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर ताला होगा। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं न कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। इस सारे हंगामे की खबर यकीनन गुलशेर को भी हो चुकी थी। कमरे में पड़ी गुलदान की किच्चियाँ उठाने मैंने ही उसे बुलाया था। अब जबकि सारिम ने मुझे कैद कर दिया था तो मैं गुलशेर के रहमो करम पर थी। मेरे शौहर ने उसे सख्ती से समझा दिया कि मुझसे कोई बात न करे और जो उनका हुक्म हो बिला चूं जरा बजा लाए। अगले दिन सारिम घर से चले गए। उनकी हिदायत के मुताबिक गुलशेर मुझे खाना देने आया। मैं अपने ही घर में कैद थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने गुलशेर को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया। पठान आदमी था, गैरत के नाम पर ही पिघल गया। कहने लगा, बाजी तुम फिक्र न करो, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। तुम्हारा शौहर अल्लाह माफ़ करे बहुत घटिया आदमी है। हमारे इलाके में अव्वल तो ऐसा आदमी होता नहीं। अगर कोई सोच भी ले तो उसकी नस्लें ही ख़त्म कर दी जाएं। गुलशेर की जज्बाती बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा। थोड़ी देर बाद गुलशेर वापस मेरे पास आया और बोला, बाजी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह बता देता मगर याद नहीं रहा। वो बेगैरत आदमी, उसने मेरे शौहर की तरफ इशारा किया, किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल घर पर फिर कोई मेहमान आएंगे और आप भी उनसे मिलेंगी। गुलशेर ने कहा तो मैं समझ गई। शिराजी साहब की मैं जिद बन चुकी थी।
انہیں اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی۔ میں نے پوری رات روتے ہوئے گزاری اور اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن گلشیر میرے پاس آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا، باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ کیوں گلشیر، تمہیں میرے کپڑوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولا، باجی زیادہ باتیں نہ کرو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک ساڑی اسے نکال کر دے دی۔ وہ ساڑی لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے عجیب و غریب انداز سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ضد کرنے پر میں نے اس کی ساڑی باندھ دی۔ اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا۔ سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وگ بھی لگا رکھی تھی۔ گلشیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے؟ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اسے ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو کم و بیش گلشیر جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ٹک ٹک کرتے جوتے میرے کمرے کی طرف گئے تو میرا دل لرز کر رہ گیا۔ مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر میرا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شیرازی صاحب کا کوٹ اور شرٹ پھٹے ہوئے تھے، جبکہ گلشیر اور اس جیسا ایک اور لڑکا شیرازی صاحب کی درگت بنا رہے تھے۔ شیرازی صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے گلشیر کو لاکھ منع کرنا چاہا مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ شیرازی صاحب جب آدھ منہے ہو گئے تو گلشیر ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں اس کا منہ تکنے لگی اور دل ہی دل میں حیران بھی ہوئی۔ میرا یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ گلشیر نے شیرازی صاحب کو کمرے میں باندھ کر ان کے منہ میں پٹی ٹھونسی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو وہ راتوں رات مجھے لے کر اپنے آبائی شہر چلے گئے۔ سارم کے ہاتھ کافی لمبے تھے۔ اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا۔ خیر، میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور پار کے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چھوٹا صحیح ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ سارم جیسا شوہر کبھی کسی عورت کو نہ ملے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔